हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनु लॉ क्लासेस। मेरा नाम गौतम दीक्षित है। नाउ फ्रेंड्स, टुडेज न्यूज़पेपर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू अपीयर फॉर क्लैट इन December 2022 एंड देन इन 2023। देन ओवर हियर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जो भी न्यूज़ हम पढ़ेंगे उसमें से आपको क्या क्या नोट करना है, अपने नोट्स में आपको क्या क्या डालना है इसमें से, बिकॉज दोज विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चंस विल बी बेस्ड ऑन दैट. So here we are, as you can see on the first page itself, we will be discussing about food safety index. पहला तो ये पढ़ेंगे. Then we will also do about GST Council. There is one editorial related with GST Council which has given which has explained this issue of GST Council, which has again come into prominence after Mohit Minerals case. एक केस का नाम है मोहित मिनरल्स केस. इसमें दो आर्टिकल डिस्कस्ड हैं, 246A एंड 279A, which was introduced by the 101st Constitutional Amendment Act which introduced GST in the Constitution. तो यहाँ पे GST काउंसिल और GST में क्या पावर है सेंटर और स्टेट को, इसको क्लैरिफाई किया गया था इस केस में. सो ओवर हियर दिस आर्टिकल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल फॉर फ्रॉम टुडेज न्यूज़पेपर. Along with that, we will do nuclear supplier group. India is seeking the membership of nuclear supplier group. ये nuclear supplier group क्या होता है, क्यों बना था ये nuclear supplier group, and अगर इंडिया इसका member बन जाता है तो what benefit will bring to India. We are going to discuss that also. So let's start with the news. The first is that Tamil Nadu tops food safety index. So if you will just see that it is the fourth edition of the report. Fourth edition of food safety index, and now this was released on the occasion of World Food Safety Day. World Food Safety Day. Okay, कल था World Food Safety Day. तो उस occasion पे Food Safety Index was released by the Ministry of Health and by the Minister of Health and Family Welfare. So here if you will just see, and the report, it was prepared by the Food Safety and Standards Authority of India, which is a statutory body in India. So now we will see the important things. तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला जो important है ये है कि पहला point that which state has topped the state food safety index this year. मतलब आपको year भी याद रखना है कि we are talking about the year 2022. So Tamil Nadu has topped. Second is that second topper and third topper कौन है. तो द सेकेंड टॉपर इज़ गुजरात, थर्ड टॉपर इज़ महाराष्ट्र. अच्छा, फिर स्मॉलर स्टेट्स में अगर हम देखेंगे तो हु स्टूड फर्स्ट, सो गोवा स्टूड फर्स्ट. तो अगर हम स्टेट्स में बात करेंगे तो तमिलनाडु एंड गोवा हैज़ टॉप्ड. तमिलनाडु अमंग द लार्जर स्टेट कैटेगरी एंड गोवा अमंग द स्मॉल स्टेट कैटेगरी. स्मॉलर स्टेट्स कैटेगरी में गोवा के बाद मणिपुर और सिक्किम का नंबर आता है. द थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, ये तो सेकेंड हो गया. थर्ड इज दैट अमंग द यूनियन टेरिटरी हु हैज़ टॉप्ड, सो जम्मू कश्मीर फॉलोड बाई दिल्ली एंड चंडीगढ़. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज, कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं कि वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे किस दिन आता है. ठीक है, ये वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, सो इट इज़ 7th June. सो व्हाट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, प्लीज़ राइट मी इन द कमेंट बॉक्स. एंड विच सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इज रिलेटेड विद एंडिंग हंगर. सो प्लीज़ राइट बोथ ऑफ दिस थिंग्स इन द कमेंट बॉक्स. नाउ if you will just see over here, so the SFSI, what is the goal of this index? It measures the performance of states on the basis of 5 parameters which has been set by the health ministry. तो पैरामीटर किसने सेट किया है, हेल्थ मिनिस्ट्री ने. रेटिंग कौन करता है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी. ओके, the next is, during the same meeting various other initiatives were launched. These were Eat Right Research Awards and Grant Phase 2. So Eat Right Creativity Challenge Phase 3 and School Level Competition and the logo for Ayurved Aadhaar. The next is about the diplomatic outreach to OIC members. So apart from this, whatever is happening, this controversy, over here OIC is important, Organization for Islamic Cooperation. So as I had discussed in my earlier video, जैसा कि मैंने कल भी डिस्कस किया था इसके बारे में, मैंने इसके बारे में बताया भी था इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में. बहरहाल अभी हम इसका रिवीजन कर लेते हैं. सो इसका जो हेडक्वार्टर है वो है जद्दा इन सऊदी अरबिया. ठीक है,
द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट द टोटल मेंबरशिप ऑफ OIC इज 57 मेंबर्स। इसमें अगर हम देखेंगे कि जो मेंबर्स हैं वो डिफरेंट कॉन्टिनेंट से आते हैं, अफ्रीका, एशिया, देन यूरोप एंड साउथ अमेरिका। ठीक है, यूरोप से सिर्फ एक ही कंट्री है इसका मेंबर, दैट इज अल्बेनिया। ठीक है, देन साउथ अमेरिका से देयर आर 2 कंट्रीज, गिनी एंड गुयाना एंड सूरीनाम। The next is Chief of Defense Staff. So now गवर्नमेंट ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के लिए एक नया रूल निकाला है. So the new rule is that any retired officer from Army, Navy and Air Force who have not attained the 62 years of age on the date of appointment, okay, रिटायर्ड सर्विस चीफ्स आर लार्जली रूल्ड आउट, स्पेशली सो फॉर द प्रेजेंट कंसिडरेशन. तो यहाँ पे कि देखिए सिंपल ये है कि एनी पर्सन हु हैज़ रिटायर्ड, हु इज़ अ रिटायर्ड आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ऑफिसर एंड who has not attained the age of 62 at the date of appointment, that officer will be considered for the post of CDS. So now over here if you will just see that an officer who is serving as lieutenant general or general, or an officer who has retired in the rank of lieutenant general or general but has not attained the age of 62, they will be considered for CDS post from army. Okay, likewise नेवी और एयरफोर्स का भी जो रूल है उसको चेंज किया गया है. तो अगर हम नेवी और इनका देखेंगे एयरफोर्स का, तो जैसे कि जैसे वाइस एडमिरल, सर्विंग वाइस एडमिरल और रिटायर्ड वाइस एडमिरल और एयर मार्शल, इन पोस्ट से जो रिटायर होता है एंड हु हैज़ नॉट अटेन द एज ऑफ 62, दे विल बी कंसिडर्ड फॉर द पोस्ट ऑफ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ. Now please write me in the comment box that who was the first chief of defense staff of India. The next is the weight of the GST Council ruling. So let's have the background of this. So there is one body, GST Council. Okay, this body is established under Article 279A. GST Council में अगर हम देखेंगे दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है. एक तो वोटिंग वेटेज, ठीक है, और एक मेजॉरिटी डिसीजन के लिए कितना वोट चाहिए. तो अगर हम वोटिंग वेटेज देखेंगे तो सेंटर का वोटिंग वेटेज कितना है, 1/3 और स्टेट्स का 2/3, बट मेजॉरिटी के लिए कितना चाहिए, 3/4. ठीक है, अब अगर हम देखेंगे इस चीज़ को कि अगर यहाँ पे जो ऑथर ने जो पॉइंट रखा है कि क्योंकि सेंटर का जो वोटिंग वेटेज है वो 1/3 है, तो अगर कोई भी प्रपोजल अगर स्टेट गवर्नमेंट प्रपोज करती हैं जीएसटी काउंसिल में, दैट कैन बी इजीली वीटोड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. क्यों? बिकॉज सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ 1/3 वोट वेटेज एंड सेंट्रल गवर्नमेंट्स येस और नो इज रिक्वायर्ड फॉर 3/4 मेजॉरिटी. ओके, दिस इज द जीएसटी काउंसिल. सेकेंड थिंग इज दैट जीएसटी काउंसिल अभी तक ये समझा जा रहा था कि जो उसकी डिसीजन होगी वो बाइंडिंग होगी ऑन स्टेट्स. ठीक है, फाइन. सो जीएसटी इट इज़ कंसिडर्ड एज एन, अब जीएसटी का क्या रोल हो गया, दैट इट इज़ एन एपेक्स बॉडी रिकमेंडिंग द चेंजेस इन दी टैक्सेशन लॉज, इनडायरेक्ट टैक्सेशन लॉज इन इंडिया. ठीक है, तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर हम देखें तो जीएसटी पार्लियामेंट का जो टैक्सेशन पावर है, टैक्सेशन पावर ऑफ पार्लियामेंट, नाउ इफेक्टिवली इट हैज़ बीन डेलीगेटेड टू हुम, टू जीएसटी काउंसिल. अब जीएसटी काउंसिल में क्या होता है कि क्या जीएसटी काउंसिल कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा देता है. ठीक है, सो इफ़ यू विल जस्ट सी ओवर हियर, इफ़ यू विल जस्ट सी द वोटिंग मैकेनिज्म, ओके, तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में यही सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम आता है कि अगर कोई भी प्रपोजल अगर स्टेट देती है तो वो वीटो किया जा सकता है बाय द सेंटर. नाउ कम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट केस, दैट इज यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर वर्सेस मोहित मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड केस. ठीक है ना, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट इट वाज डीलिंग विद ओशियन फ्राइट्स. ओके,
रिलेटेड टू द लिवाई ऑफ इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स ऑन ओशियन फ्लाइट। ये जो ओशियन फ्लाइट होता है इट इज़ पेड बाय द फॉरेन सेलर टू अ फॉरेन शिपिंग कंपनी। ओके, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इसको बोला कि ये टैक्स का पार्ट नहीं बन सकता, ठीक है ना। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला वो ओशियन फ्लाइट के बारे में बोला, साथ साथ में सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज़ और बोला जो सबसे इम्पोर्टेंट है, दैट जीएसटी काउंसिल आर नॉट बाइंडिंग ऑन आइदर द यूनियन और द स्टेट्स। ओके, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सेकेंड है कि द सुप्रीम कोर्ट सेज दैट देयर इज वन आर्टिकल, आर्टिकल 246A, which gives power to the union and state government simultaneously to legislate on the GST. Fine. So if you will just see that the two tiers of the Indian Union can simultaneously legislate on matters of the GST except for IGST. That is, IGST का full form है Integrated Goods and Services Tax, which is the legislative domain of Union government. Now, there is one thing to understand. जो पूरा आर्टिकल है ये सजेस्ट कर रहा है कि क्या जीएसटी काउंसिल का रिकमेंडेशन ओके बाइंडिंग है या नहीं है स्टेट्स के ऊपर, क्या जीएसटी काउंसिल का रिकमेंडेशन बाइंडिंग है कि नहीं है। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि बाइंडिंग नहीं है, सेंटर एंड स्टेट्स दे हैव द लेजिस्लेटिव पावर। ओके, को लेजिस्लेटिव पावर मीन्स दोनों को पावर है टू मेक लॉज ऑन जीएसटी। ओके, बट इफ यू विल जस्ट सी ओवर हियर दैट अगर हम थोड़ा सा डिबेट की बात करें तो 2013 में जब जीएसटी के बारे में सबसे पहले डिबेट हो रहा था, व्हेन द अमेंडमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट, तो पहली बार क्या हुआ था दैट स्टैंडिंग कमिटी ऑन फाइनेंस, ओके, दैट वाज डिबेटिंग इन 2011। सो अटॉर्नी जनरल हैड सेड, तब के अटॉर्नी जनरल ने, दैट द पावर्स ऑफ द लेजिस्लेचर ओवर द फाइनेंस आर सैक्रोसैंक्ट एंड दे आर नॉट अफेक्टेड बाय द सेटिंग अप ऑफ जीएसटी काउंसिल। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो जीएसटी काउंसिल है उसका जो रिकमेंडेशन होगा वो बाइंडिंग नहीं होगा। आफ्टर ऑल द स्टेट लेजिस्लेचर्स आल्सो हैव द पावर टू मेक लॉज ऑन जीएसटी। ओके, द नेक्स्ट इज द पॉलिटिक्स इन्वॉल्व विद द जीएसटी काउंसिल। तो जैसे कि जब आप ये पैराग्राफ पूरा पढ़ेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि देर आर लाइक states which are ruled by the same party which is ruling at the center and the states which are ruled by the different party. तो normally क्या होता है कि if there are proposals which have been put by the state where other than ruling party is ruling the state, तो क्या होता है कि उस proposals पे बाकी states which are ruled by the same party as in the center उनके support नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पे clear cut एक there are political things also involved with the GST council. So if you will just see the last paragraph, it gives the best summary of everything, that the submission of the Union government to the Supreme Court of India that the GST Council's recommendations are binding on Parliament or Assembly, it can be considered as a precursor for a willful give away of the legislative power on commodity taxation to the GST Council, which is not the forum for the direct representatives of the people to legislate on any matter. फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर जीएसटी काउंसिल ही सब डिसीजन ले रही है इनडायरेक्ट टैक्सेशन के बारे में, ठीक है ना, तो इट मीन्स दैट इफेक्टिवली जीएसटी काउंसिल इज मेकिंग अ लॉ। इट मीन्स दैट जीएसटी काउंसिल हैज़ रिप्लेस्ड पार्लियामेंट इन द फील्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेशन, बट पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में इट इज़ द पार्लियामेंट और द लेजिस्लेचर टू विच द सुप्रीम पावर बिलोंग्स टू मेक लॉज ऑन एनी मैटर। ओके, द सेकेंड इज कि जो लोप साइडेड पावर स्ट्रक्चर है जीएसटी का, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया ना वेटेज के बारे में, वैसा, तो वो इट गिव्स द फेवर टू द इट फेवर्स द यूनियन गवर्नमेंट मोर इन द जीएसटी काउंसिल एंड इट गोज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म एंड डेमोक्रेसी। ओके, द नेक्स्ट इज माउंटिंग ई डेब्रिस। तो हम पहले ही जानते हैं कि द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इट हैज़ रिलीज्ड अ ड्राफ्ट नोटिफिकेशन फॉर ई वेस्ट मैनेजमेंट इन इंडिया। पहली बार ये 2016 में आया था, फिर 2018, अब 2022 में इसमें अमेंडमेंट की बात हो रही है।
where the target is to recycle at least 60% of the e-waste produced by manufacturing companies, which will be increased to 70% and then to 80% by 2025. Now this number gives us the status of e-waste in India. तो अगर हम इंडिया में देखेंगे तो एक रिपोर्ट है सेंटर फॉर साइंस प्रिपेयर्ड बाय सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट. उस रिपोर्ट में ये बोला गया है कि इफ़ वी गो बाय द डेटा प्रोड्यूस्ड बाय सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, then about 1000 kilotons of e-waste were produced in India in 2019-20. बट अगर हम UN डेटा को अगर देखते हैं तो UN डेटा सेज दैट e-waste produced by in India was 3 times this 1000 kilotons. बट अगर हम देखेंगे कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा e-waste कौन प्रोड्यूस करता है? चाइना, उसके बाद US. बट इंडिया में सबसे प्रॉब्लमेटिक बात क्या है कि 10% ऑफ द e-waste विच वॉज जनरेटेड इन 2018-19 वॉज कलेक्टेड. रिसाइकल की भी बात नहीं हुई, सिर्फ कलेक्ट किया गया था. ओके, सो व्हाट हैपन्स दैट इफ दिस ई-वेस्ट आर इन द एनवायरनमेंट एंड देयर इज नो प्रॉपर डिस्पोजल मैकेनिज्म, सो इट कंटेमिनेट्स द एनवायरनमेंट, मीन्स it harms the environment by the releasing the hazardous metals which are toxic in nature and they have long term effects on human body. Now see, some of the metals which are released, toxic metals which are released are lead. ठीक है ना, इसके टॉक्सिक इफेक्ट्स देखिए यहाँ पे अच्छे से लिखा हुआ है. सो न्यूरो डेवलपमेंटल, रीनल, कार्डियोवास्कुलर एंड रिप्रोडक्टिव डैमेज. कैडमियम, सो इट इज़ रीनल एंड बोन. मर्क्यूरी, न्यूरो डेवलपमेंटल एंड रीनल. रीनल का मतलब होता है किडनी. कार्डियोवास्कुलर मतलब रिलेटेड टू हार्ट. निकल, एलर्जी एंड डैमेजिंग द लीवर. लिथियम, लंग डैमेज. बेरियम, न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज. then beryllium, cancer and lung disease. The next is bad bank. So what is bad bank? So suppose there is one bank which has non-performing assets. Non-performing asset का मतलब होता है वो assets जिन पे पिछले 90 दिन से ना कोई इंटरेस्ट आया ना प्रिंसिपल आया, those become non-performing asset. और अगर ये 12 महीने तक चल गया है ऐसे तो उसको हम कहते हैं लॉस एसेट्स. ठीक है. नाउ दिस लॉस एसेट्स, इफ द बैंक्स दे हैव लॉस एसेट्स देन दे हैव टू कीप सम परसेंटेज ऑफ दिस लॉस्ट एसेट विद देम विच दे कैन नॉट लैंड. जैसे कि किसी बैंक के पास एक्स अमाउंट ऑफ लॉस एसेट है तो इसका कुछ परसेंटेज दे हैव टू कीप देमसेल्व्स विच कैन नॉट बी गिवन फॉर लैंडिंग. ओके, इस प्रोसेस को कहते हैं प्रोविजनिंग. वी कॉल दिस एज प्रोविजनिंग. और इस रेशियो को हम कहते हैं प्रोविजनिंग रेशियो. इसका मतलब कि अगर x है और मान लो कि प्रोविजनिंग रेशियो 10% है तो 0.x अमाउंट ऑफ द मनी कैन नॉट बी लैंडेड बाय द बैंक. नाउ अब यहाँ पे इनको बचाने के लिए किसको लाना पड़ेगा? बैड बैंक को लाना पड़ेगा. सो what bad bank will do? Bad bank will take all the lost assets of the bank, that is public sector banks. ठीक है. उसके बाद अब क्या होगा कि अब बैंक, इस बैंक के बैलेंस शीट में कोई भी नॉन परफॉर्मिंग एसेट दिखेगा ही नहीं. अगर नॉन परफॉर्मिंग एसेट नहीं दिखेगा तो प्रोविजनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. प्रोविजनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो ये जो फंड है वो अब लैंड किया जा सकता है. ठीक है. इन द मीन टाइम ये बैड बैंक क्या करेगा? बैड बैंक इस एसेट को लेगा और इसको लिक्विडेट करेगा. ठीक है. तो क्या ये कॉन्सेप्ट इंडिया में पहली बार आया है पूरे वर्ल्ड में? तो अगर ऐसा है तो नहीं. जस्ट सी दिस लाइन. जब 2008-9 में जब फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी यूएस में, तो यूएस ने भी एक प्रोग्राम चालू किया था विच इज़ कॉल्ड एज ट्रबल्ड एसेट रिलीफ प्रोग्राम. ओके, इट वाज मॉडल्ड अराउंड द आइडिया ऑफ बैड बैंक. तो यहाँ पे भी इस प्रोग्राम ने क्या किया कि सारे लॉस एसेट ले लिए, बाद में उनको लिक्विडेट करके जो भी मनी आया उसको बाद में रिटर्न कर दिया. अब हमारे यहाँ पे भी एक बैड बैंक है जिसके बारे में यहाँ पे बात हुआ है, दैट इज़ कॉल्ड एज NARCL, दैट इज़ नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन लिमिटेड. ठीक है. अब ये NARCL क्या करेगा? NARCL अगेन पब्लिक सेक्टर बैंक से सारे उनके बैड लोन्स ले लेगा. ठीक है. 15% जो है वो पेमेंट करेगा और बाकी 85% का सिक्योरिटी रिसीट देगा बैंक्स को.
अब ये सिक्योरिटी रिसिप्ट बैंक के पास है, NARCL ने बैंक को दिया। जब बैंक इनके लॉस एसेट को लिक्विडेट कर देगा, मतलब मोनेटाइज कर देगा, तब जो पैसा मिलेगा उससे ये बाकी के 85% वो बाद में उस बैंक को पे करेगा। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बैड बैंक इन इंडिया। So the question can come that name of the bad bank in India, then it is NARCL, National Asset Reconstruction Company Limited। तो यहाँ पे दो कंपनीज की बात हुई है, वन इज NARCL एंड द नेक्स्ट इज IDRCL, ठीक है ना। तो NARCL क्या करेगा, इट विल बाय द एसेट्स। इसका टोटल टारगेट कितना है, ₹2 लाख करोड़। इट इज गोइंग टू लिक्विडेट ₹2 लाख करोड़ ऑफ बैड एसेट्स। तो ये बाई करेगा और उसको लिक्विडेट करने का काम कौन करेगा, उसको मोनेटाइज करने का काम कौन करेगा, वो करेगा IDRCL। ओके, द नेक्स्ट इज न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। सो इंडिया इट वांट्स टू जॉइन द न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप NSG। So if you will just see, India is already a member of Missile Technology Control Regime, Australia Group and Wassenaar Agreement, but India is not a member of NSG. These four things are called as export control regime। तो NSG जो है न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, it is a 48 member group, and this the objective of nuclear supplier group is to regulate the trade in nuclear technology and fissile materials and to contribute to non-proliferation of nuclear weapons। So India is not a member of NSG। Now इंडिया को सबसे ज़्यादा ऑपोजिशन कहाँ से आ रहा है, चाइना से आ रहा है, ठीक है। नाउ NSG जो है न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, ठीक है ना, ये एस्टेब्लिश, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, ठीक है। तो देखिए, जब हम न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी की बात करते हैं, सो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी रिकॉग्नाइज ओनली 5 न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स, only 5 nuclear weapon states। So these 5 nuclear weapon states are the P5 members of United Nations Security Council। So these are UK, USA, Russia, France and China, ठीक है। अब इंडिया इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज अ न्यूक्लियर वेपन स्टेट इन अंडर न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, ठीक है। बट क्या हुआ कि 1974 में इंडिया कंडक्टेड इट्स फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट एट पोखरन विच इज कॉल्ड एज ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। बुद्ध पूर्णिमा के दिन हुआ था, तो यही नाम है इसका, ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। सो इंडिया कंडक्टेड अ न्यूक्लियर वेपन टेस्ट। सो certain 48 countries, okay, they came together to form a nuclear supplier group to stop the proliferation of nuclear technology to other countries in response to India's first nuclear test। The next is national air sports policy। So the Union Ministry of Civil Aviation, it has पहले भी इसको अनवील किया जा चुका है, ठीक है। ये एक रिवीजन होता है, जो पहले ये न्यूज़ को फॉलो कर रहे हैं मेरे साथ, उन्होंने पहले इसके बारे में पढ़ा हुआ है। सो देयर विल बी अ 4-tier गवर्नेंस स्ट्रक्चर एंड एट द टॉप विल बी एयर स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। ओके, इट विल बी द एपेक्स बॉडी विच विल ओवरसी एस्पेक्ट्स सच एज रेगुलेशन, सर्टिफिकेशन, एक्सीडेंट्स एंड पेनाल्टीज। फाइन, नाउ there will be 4-tier structure as we have already known। तो ASFI सबसे टॉप पे है, फिर नेशनल एसोसिएशंस फॉर इंडिविजुअल स्पोर्ट्स, देन रीजनल एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल यूनिट्स। नाउ यहाँ पे मिनिस्ट्री, इंडिया को कौन रिप्रेजेंट करेगा एट वर्ल्ड एयर स्पोर्ट्स फेडरेशन, तो इट विल बी ASFI विच विल बी रिप्रेजेंटिंग इंडिया एट वर्ल्ड एयर स्पोर्ट्स फेडरेशन। Then if you will just see that AFSI it will provide governance over different aspects, air sports policy को regulate करने की ज़रूरत है। So regulation, certification, competitions, awards and penalties, and it will publish guidelines within a period of 6 months। Okay, and now who will be chairing this body? It will be chaired by secretary under Ministry of Civil Aviation। Now this is very important। Sports क्या क्या आने वाले हैं इसके अंदर, तो see aero modeling, model rocketry, amateur built and experimental aircraft, ballowing drone, gliding powered gliding, parachuting,
paramonitoring, powered aircraft and rotorcraft. The next is joint count of elephant and big cats. तो अब इस साल यूनिफाइड काउंटिंग होने वाली है 3 इंपॉर्टेंट एनिमल्स की, टाइगर, लेपर्ड एंड एलिफेंट की, अक्रॉस द कंट्री. टाइगर सर्वे जो है पहले इट वाज कंडक्टेड वंस इन अ 4 ईयर एंड एलिफेंट्स वर कंडक्टेड वंस इन अ 5 ईयर्स. ठीक है ना. लेपर्ड का काउंटिंग अब होगा यहाँ से इनके साथ ही में. अब टोटल पॉपुलेशन कितना है टाइगर का इंडिया में? 2967. 70% ऑफ द वर्ल्ड टाइगर्स आर इन इंडिया. एंड एलिफेंट का 29,964. नाउ एलिफेंट के नंबर्स को हम कैसे एस्टिमेट करते हैं? सो इट इज़ एस्टिमेटेड बाय स्टेट्स बेस्ड ऑन डीएनए एनालिसिस ऑफ देयर ट्रंक ग्रुपिंग्स एंड स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स. टाइगर्स को कैसे हम ट्रैक करते हैं? कैमरा ट्रैप्स आइडेंटिफाइंग इंडिविजुअल्स बेस्ड ऑन स्ट्राइप्स. स्ट्राइप्स का मतलब जो टाइगर के जो स्किन पे जो निशान होता है वो हर टाइगर का डिफरेंट होता है. एज वेल एज स्टैटिस्टिकल एनालिसिस. The next is that we are going to do away with head count method for conducting the census of elephants. Why? Because it leads to problem of double counting. मतलब एक ही जानवर को 2 बार काउंट करने का इसमें प्रॉब्लम है. The next is, now see, this is the last news for today. First lot of cheetahs to be brought to India soon. So cheetah which was extinct in India, now the first batch of cheetahs are going to arrive in Kuno National Park in Madhya Pradesh. Okay, now see, cheetah in India, they were extinct since 1950s. Now they are being imported from South Africa and Namibia. So friends, that's all for today. We will meet tomorrow again with the daily Hindu analysis. Till then, have a nice day. Take care. Thank you.